Morning students. Last time I discussed with you about Sedgwick theory. Today I am going to discuss about the valence bond theory. On the basis of this we can discuss about the geometry and the magnetic behavior of the complexes. The valence bond theory that we did in +1, that is for covalent compounds, but this theory is meant for coordination compounds or complexes. The main points of this theory are: first, central metal or center metal ion provides necessary number of vacant orbitals, which is equal to its coordination number. Two ligands for coordination, purposes. For coordination purposes. But before providing vacant orbital to ligands, they undergo hybridization. And the hybridization decides the approachment of ligand. किधर से लिगेंड्स को आना है, लीनियरली आना है, टेट्राहेड्रली आना है, स्क्वायर प्लेन ऑफ क्वेश्चन में आना है, ऑक्टाहेड्रली आना है, किस तरह से होगा that is decided on the basis of type of hybridization. sp linear, dsp2 square planar, sp3 tetrahedral, d2 sp3 and sp3 d2, that is octahedral. And this hybridization also gives the information about the geometry of the complex. Even after providing the vacant orbital, if ligand contains partly filled or half filled orbitals, then the complex is paramagnetic, but in the absence of half filled orbital, the complex is diamagnetic. Generally, you will provide with some formula of a complex. You have to discuss about the geometry as well as the magnetic behavior of the complexes. Sometimes same metal form a different complexes with different ligands. Then he may ask why they have different geometries, why they have different magnetic behavior. Such type of questions are asked. इस थ्योरी के अंदर एक चीज का ध्यान में रखना होगा, जो कि मैं नेक्स्ट थ्योरी के बेस पे बता रहा हूँ, इस थ्योरी में नहीं बताया, लेकिन यूज उसी को किया कि अगर स्ट्रॉन्ग लिगेंड होगा तो अगर रूम से अवेलेबल नहीं होगा तो रूम प्रोवाइड किए जाएंगे पेयर अप करवा करके, और अगर वीक लिगेंड होगा तो फिर पेयर अप नहीं होगा। ये नेक्स्ट थ्योरी की वजह से इसने तो सीधा यूज कर लिया, बताया नहीं, कंफ्यूज किया है। सबसे स्ट्रॉन्ग लिगेंड CO है, इवन CN, NH3, इस तरह के लिगेंड स्ट्रॉन्ग लिगेंड की कैटेगरी में आता है। मॉडरेट लिगेंड, F नेगेटिव, Cl नेगेटिव, I नेगेटिव, ये लिगेंड वीक लिगेंड कहते हैं। तो देखते हैं, पहला कॉम्प्लेक्स ले रहे हैं ये NH3। तो NH3 is neutral, therefore the oxidation state is +3, x + 0 equal to +3, there are oxidation +3. So in this case, in this complex the oxidation state of chromium is +3, and for plus, in case of chromium you know argon 3d5,4s1 पढ़ा हुआ हमने। तो 3 इलेक्ट्रॉन मूव करने, एक तो आउटरमोस्ट शेल से मूव करेंगे 4s से, अभी 2 मूव करने वो कहां से करेंगे D से, तो क्या बचा 3d3। तो मैं अगर बॉक्स डायग्राम आर्गन ये 3d इलेक्ट्रॉन दिखा दिया, खाली पड़े हैं। अमोनिया मोनोडेंटेड लिगेंड है, कितने रूम्स चाहिए इसको 6, तो 2 रूम्स तो यहाँ D से प्रोवाइड हो जाएंगे, 1 रूम S से और 3 रूम B से। तो कौन सी हाइब्रिडेशन हो जाएगी,
D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी। अब लिगेंड D2sp3 तो लिगेंड को किस ढंग से अप्रोच करना है, ऑक्टाहेड्रल मैनर में। अब ये वाली पोजीशन कहाँ पे कौन ऑक्युपाई कर लेगा, लिगेंड। ये रेड क्रॉस दिए हैं, जानबूझ के कलर चेंज किया ताकि आपको पहचान हो जाए कि वैसे ये डबल क्रॉस है, कि आपको ये पहचान हो जाए कि दीज पोजीशंस आर ऑक्युपाइड बाय द लिगेंड। मैंने जर्नल लिखा, अदरवाइज डिफरेंट कॉम्प्लेक्स में कभी NH3 है, कभी CN है, कभी F है, कभी Cl है, तो आपको लिखना पड़ेगा दिस मैंने एक स्पेसिफिक ले लिया बाय द लिगेंड, जो भी लिगेंड दैट इज पोजीशन। So the complex is octahedral why due to D2sp3 aberration, D2sp3 sp3 D2 दोनों में octahedral। And complex is paramagnetic because after providing rooms to the ligands, it contains half-red orbitals. Hence the complex is paramagnetic. In this way we can give brief explanation about this complex. Let us take up another complex FeCN6 3d6 first oxidation state, x minus 6 is equal to minus 4, then x is equal to plus 2. Here the oxidation state of iron is plus 2. Rn is 3d6 4s2, 4s electron remove कर दिया, Rn2 post के लिए 3d6 आ गया, तो इसका मतलब यहाँ पे 3d6 हुआ, आगे कौन है 4s है, 4 मुझे कितने Cn इज मोनोडेटेड, मुझे कितने वेकेंट ऑर्बिटल चाहिए, 6 चाहिए, अभी तो 4 ही अवेलेबल है। अब दो पॉसिबिलिटी, अगर तो लिगेंड वीक होगा तो 4 ऑर्बिटल चूज हो जाएगा, और अगर स्ट्रॉन्ग लिगेंड होगा तो इनको पेयर अप करवाइए। तो Cn स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, वेरी स्ट्रॉन्ग लिगेंड, सबसे पावरफुल तो CO, तो क्या करेगा, इनको पेयर अप करवाएगा, तो ये इलेक्ट्रॉन उठ करके इधर पेयर अप हो गए, तो 2d से 1s से 3 में तो कौन सी हाइब्रिडाइजेशन हो गई, D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो गई। अब D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो गई तो अब यहाँ पे कौन आएंगे, लिगेंड्स आएंगे, यहाँ रेड हाथ से आपको क्रॉस से दिखा दिया गया, नीचे लिख देंगे क्रॉस, जैसे यहाँ पे नोटेशन पोजीशन ऑक्युपाइड बाय द लिगेंड। D2sp3 aberration octahedral and it contains no partly filled d orbital, any or no half filled orbital. Due to absence of half filled orbital, the complex is diamagnetic. ये एक ब्रीफ एक्सप्लेनेशन। अब यहीं पे अगर FeCN3 नेगेटिव होता, अगर FeCN3 नेगेटिव होता तब ऑक्सीडेशन स्टेट क्या बनती, +3 बनती, कॉन्फ़िगरेशन क्या बनता 3d5, 3d5 में ये कितने रूम्स खाली पड़े हैं, 4, दो पॉसिबिलिटी कि स्ट्रॉन्ग होगा तो इनको पेयर अप करवाएगा, वीक है तो आगे चला जाएगा, तो Cn तो अभी तो पड़ा है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, इनको पेयर अप करवाएगा, 5 इलेक्ट्रॉन एडजस्ट कर लें, ये 5 इलेक्ट्रॉन एडजस्ट होंगे, 1 2 3 4 5, 2 रूम्स यहाँ से 1 and 3, तो यहाँ पे अब ज्योमेट्री वही, लेकिन क्या बन गया, पैरामैग्नेटिक। क्यों, अब हाफ red ऑर्बिटल मिल गए, तो ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आया होगा, FeCN6 4 नेगेटिव, FeCN6 3 नेगेटिव, सेम ज्योमेट्री बट डिफरेंट मैग्नेटिक बिहेवियर एक्सप्लेन। तो 4 नेगेटिव में आयरन +2 था, उस केस में आपको क्या मिला, डायमैग्नेटिक बिहेवियर, उस केस में पैरामैग्नेटिक। और कॉम्प्लेक्स लेते हैं, जैसे ही FeSp6 3 नेगेटिव,
तो x -6 इक्वल टू -3 प्लस 3 ऑक्सीडेशन स्टेट आई, ये बना। तो 3D आर्गन 3D 5 ये आ गए, F नेगेटिव, Cl नेगेटिव, Br नेगेटिव, I नेगेटिव, ये तो बहुत ही वीक लिगेंड है। तो फिर क्या होगा इस केस में, ये पेयर अप नहीं होंगे, यही Cn होता तो पेयर अप हो जाता। क्या हुआ, आउटर डी ऑर्बिटल इस्तेमाल, क्या हाइब्रिडेशन हुई, sp3d2। तो अब हमें समझ में आया कि ये क्यों लिखा मैंने d2sp3 sp3d2। अगर तो इनर डी ऑर्बिटल n-1 डी ऑर्बिटल यूज हो जाए तो d2sp3, अगर आउटर डी इस्तेमाल हो जाए, n डी ऑर्बिटल यूज हो जाए तो sp3d2। और ये पोजीशन किसने ऑक्युपाई कर ली, लिगेंड्स ने। sp3d2 हाइब्रिडेशन की वजह से ऑक्टाहेड्रल बट द कॉम्प्लेक्स इज पैरामैग्नेटिक, much higher paramagnetic than that of a FeCN639। उसमें तो एक ही एम्पियर है, इसमें 5 एम्पियर है। बुक में और भी मिलेंगे, मैंगनीज का एग्जाम्पल है, मैंगनीज विद Cn मैग्नेटिक बिहेवियर बहुत ही कम होगा, और मैंगनीज विद वाटर मैग्नेटिक बिहेवियर बहुत ज़्यादा होगा। और क्या हमने यहाँ पे सीखा, ये पेयरिंग तभी होगी, अब यहाँ पे स्ट्रॉन्ग लिगेंड होने के बावजूद भी पेयरिंग नहीं हुई, क्यों, रूम्स अवेलेबल है। ये तो पेयर तभी करवाएगा जो रूम्स अवेलेबल ना हो। NaCO4, CO इज न्यूट्रल, सबसे स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। निकल की 0 ऑक्सीडेशन स्टेट बनी, 3D8 बड़ी मुश्किल हो गई कि यार ये 3D8 पहले एक इलेक्ट्रॉन देके पेयरिंग करवा दी, फिर 4 रूम चाहिए, 3 रूम्स अवेलेबल। और अभी बताया है पावरफुल लिगेंड हो तो क्या करेगा, शिफ्ट करा देगा। यहाँ पे तो पहले तो विद इन डी था, अब तो क्या हुआ, यहाँ 4s इलेक्ट्रॉन चाहिए, जंप करा दिया, 4s हमें अवेलेबल हो गया। 4s 4p कौन सी हाइब्रिडेशन हुई, sp3 हाइब्रिडेशन। और sp3 हाइब्रिडेशन होने की वजह से यहाँ पे कैसी ज्योमेट्री आएगी, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री आएगी, टेट्रा और टेट्राहेड्रल एंड डायमैग्नेटिक बिहेवियर, टेट्राहेड्रल एंड डायमैग्नेटिक बिहेवियर। वो बाद में एक पेयरिंग वाला दिखा देंगे, क्रॉस दिखा करके। तो NaCO4 टेट्राहेड्रल है, डायमैग्नेटिक है, बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन किया जाता है एग्जामिनेशन, बल्कि इन दोनों का कॉम्बिनेशन। दे हैव सेम मैग्नेटिक बिहेवियर बट डिफरेंट ज्योमेट्री एक्सप्लेन। देखते हैं कैसे ज्योमेट्री डिफरेंट है। NaCN4 2 नेगेटिव, तो इस केस में क्या हुआ, निकल x -4 इक्वल टू -2, निकल इज +2 ऑक्सीडेशन स्टेट। तो निकल +2 है तो 3D8 बनेगा, 4s इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे, और एज ए रिजल्ट हमारे पास ये 3D8 आया, 4s और 4p खाली पड़ा। कितने रूम्स हमें चाहिए, 4 है, लेकिन कई जगह होता है भाई वहाँ पे क्वार्टर मिल जाए तो अच्छा रहेगा, तो यहाँ पे Cn स्ट्रॉन्ग है, कहते हुए नहीं D मिल जाए तो अच्छा होगा, तो मिल सकता है इसको। क्या हो, ये पेयर अप हो जाए, पेयर अप हो जाए, रूम तो 4 है क्योंकि मोनोनेट 4 रूम मिलेगा, एक D से, एक S से और 2 P से, सारे के सारे नहीं, D2sp3। एक आदमी 2 खाट थोड़ा ले सकता है, और 1 2 3 4 4 पूरे हो गए, इसलिए कौन सी हाइब्रिडेशन हुई,
D2 और DsP2 हाइब्रिडेशन हो गई। अब यहाँ पे ये पोजीशन किसने ऑक्युपाई कर ली? लिगेंड्स ने। तो DsP2 हाइब्रिडेशन है, इसलिए स्केल प्लेनर कॉम्प्लेक्स हुआ। और डायमैग्नेटिक क्यों? क्योंकि कोई भी हाफ फील्ड ऑर्बिटल नहीं है। तो ये क्वेश्चन कॉम्बिनेशन में काफी आता है कि both are have same magnetic behavior, means diamagnetic, but have different geometry। और एक और क्वेश्चन ये कॉम्बिनेशन में काफी आता है, और इस केस में क्या है? दे हैव, इस केस में मैग्नेटिक बिहेवियर और ज्योमेट्री दोनों ही डिफरेंट। देखते हैं कैसे। यहाँ पे Cl की जगह Cl कर दिया, क्लोरीन कर दिया, एंड क्लोरीन इज वीक लिगेंड, तो ये इसको पेयर अप नहीं करवाएगा। 3D8 यहाँ तो पेयर अप करवा दिया था, तो यहाँ पे 3D8 ये था, 3D8 पेयर अप करवा दिया था, लेकिन ये पेयर अप नहीं हो पाएगा क्योंकि Cl वीक लिगेंड है। तो रूम तो 4 ही चाहिए, फिर कौन से यूज होंगे? 1 2 3 4। यहाँ पे इस ढंग से ये पोजीशन कौन ऑक्युपाई कर लेगा? हाथ में लिगेंड ऑक्युपाई कर लेगा। तो sp3 हाइब्रिडेशन की वजह से टेट्राहेड्रल शेप, और इवन आफ्टर प्रोवाइडिंग वेकेंट ऑर्बिटल टू लिगेंड, it contains half filled orbitals and hence the complex is paramagnetic। ऐसे ही हम जिंक का केस लेते हैं। Zn NH3 4 2 positive, NH2 is न्यूट्रल। तो जिंक पे कौन सा चार्ज आया? +2 आया। तो जिंक +2 में क्या बनेगा? आर्गन 3D10। तो बॉक्स डायग्राम क्या बनेगा? आर्गन 3D10 1 2 3 4। One, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10 पूरा 10 हो गए। ये 3D, ये 4s, 4p। अब लिगेंड कैसा ही क्यों ना हो, कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, तो फुली फिल्ड। तो कौन सी हाइब्रिडेशन हुई? sp3 हाइब्रिडेशन हुई। तो Zn जिंक 2 पॉजिटिव, वन 2 3 4 5 6 7 8 9 10 3D 4s 4p। sp3 aberration, tetrahedral shape, and diamagnetic behavior। Next,
कॉपर का केस लेते हैं। CuCl4 2 negative. Cl is weak ligand. X -4 equal to -2. X is equal to +2. So copper 2 positive is argon 3D9. Then argon 1 2 3 4 5 6 7 8 9. This is 3D 4s 4p vacant orbital है, वीक ligand है, वैसे कोई स्कोप भी नहीं बन रहा, अभी दिख नहीं रहा, तो कौन सी हाइब्रिडेशन होगी इस केस में? sp3 हाइब्रिडेशन होगी। Then CuCl4 2 negative, argon 1 2 3 4 5 6 7 8 9 4s 4p। तो यहाँ कौन पोजीशन लेगा? डीगेट लेंगे। sp3 टेट्राहीड्रल शेप होगा एंड पैरामैग्नेटिक बिहेवियर होगा। रीजन है बिल्कुल क्लियर, हाफ फील्ड ऑर्बिटल, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हाफ फील्ड ऑर्बिटल इट इज पैरामैग्नेटिक एंड ड्यू टू sp3 हाइब्रिडेशन इट हैज टेट्राहीड्रल शेप। एक कॉम्प्लेक्स आपको क्रैम करना पड़ेगा, वो कॉम्प्लेक्स कौन सा? यही अगर CuNH3 4 2 पॉजिटिव आ जाए, NH3 is neutral, copper +2 3D9, but 4 ohms चाहिए, 4 ohms अवेलेबल है, लेकिन sp3 हाइब्रिडेशन नहीं होगा इस केस में। क्या होगा इस केस में जो अभी तक किसी ने भी नहीं किया? ये कोशिश करेगा एक d ऑर्बिटल मिल जाए। कैसे मिलेगा? थ्री डी 4s 4p, this electron jumps to p subshell, hybridization dsp2, special case है। now CuNH3 4 2 positive, argon 1 2 3 4 5 6 7 8 4s 4p।
3D, 4S, 4P, and these are the position occupied by the ligands. So due to dsp2 hybridization, it is square planar. And diamagnetic. Sorry, paramagnetic. Paramagnetic. Similar behavior is observed in case of CuCN 4 to negative. +2 oxidation state, Cn is strong ligand, it will pair up, copper +2. लेकिन कभी कभी मजबूरी हो जाती है स्ट्रॉन्ग लिगेंड होने के बावजूद, जैसे जिंक के केसेस हैं कि हम पेयर अप नहीं करवा पाए। मैं निकल का केस ले रहा हूं। Ni NH3 6 times 2 positive. No doubt nickel is in +2 oxidation state and the configuration is 3D8. 3D8 means argon 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4s, 4p. स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। क्या करना चाहिए? पेयर अप करवा दें। रूल कितने चाहिए? 6। तो 4 अगर मैं यहाँ से पेयर अप करवाता हूँ तो 5 बनते हैं, 6 तो मिलते हैं। तो यहाँ पे मजबूरी है कि क्योंकि यहाँ पे पेयर अप की पॉसिबिलिटी नहीं रही। अगर यही 4 होता फार्मूला तो काम कर देते हैं, लेकिन नहीं। तो इस केस में आउटर डी ऑर्बिटल यूज होगा और डी क्या हाइब्रिडाइजेशन होगी? sp3d2 तो Ni NH3 6 2 positive, argon 3D8 1 2 3 4 5 6 7 8 4s 4p and 4d. sp3d2 hybridization, and these are the positions occupied by the ligands. Octahedral and paramagnetic. You will get similar behavior in case of NiH2O6 2 positive. तो चाहे स्ट्रॉन्ग हो वीक हो ऑर्बिटल तो आउटर ही यूज होना है। तो वीक और स्ट्रॉन्ग का रोल कब ऑक्टाहेड्रल में कब नहीं रहता? या तो रूम्स ही नहीं अवेलेबल हों या पहले रूम अवेलेबल हों, उस केस में वीक और स्ट्रॉन्ग का कोई रोल नहीं है। अदरवाइज तो जहाँ पे
रूम अवेलेबल की पॉसिबिलिटी है, उस केस में स्ट्रॉन्ग लिगेंड का रोल होगा।